Hello students, welcome back to your science class. So in the previous video we talked about the kinds of plastic, the kind of bonding found in plastics. So I told you about two kinds of bindings, two kinds of bondings. One was your linear binding, okay, which is just like a straight line, and second one was the cross-linked bonding, okay, cross-linked. So I told you that I also explained you their structure in the last video, and I also told you that cross-linked polymers, okay, they are a kind of polymers. So cross-linked polymers are more stronger than the linear polymers. Okay, now we're going to talk about a few kinds of plastics. Okay, for example, if I talk of linear kind of plastic, I can give you an example of something what you call as polythene. Okay, polythene. Now polythene is nothing but the plastic bags that you use, that you get in shops. If you go to buy a product, they pack in plastic bags. Okay, those are made up of polythene. We call them polythene only in English. So polythene is actually made up of two words, poly and ethene. Okay, poly we already know. Poly comes from the word polymer, right? That is your many. Okay, and here the repeating unit is ethene. Okay, ethene is a repeating unit. You just remember this for now, that the repeating unit in polythene is ethene. Okay, so and this is an example of the linear polymer. Okay, and means if you see the structure of the bags, the plastic bags, then you will notice that the microscopic structure, जिसका microscope से, which we cannot see from the naked eye. Okay, we cannot see them from the naked eye. So when seen from the microscope, we observe that they are made up of linear polymers of ethene. Okay, polymers of ethene. So they are called polythene. Okay, so that whole structure is called polythene. Okay, and it's kind of linear polymer. Second one, we're going to talk about certain kind of plastics, what we call as thermo. सबसे पहले the word, what does the word thermo means? Thermo is always related to temperature. Okay, temperature. We know that the device which we use to measure the temperature is called thermometer. Means एक मीटर एक इस तरह की device which is used to measure the temperature. Okay, so thermo word is associated with temperature. ठीक है, so we are going to talk about certain kind of plastics. उसमें से एक टाइप का प्लास्टिक is sensitive to temperature. Sensitive मतलब it basically उसकी शेप चेंज हो जाती है, या फिर वो एक तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर. ठीक है, यानी वो बेंड हो जाता है या सॉफन हो जाता है. मतलब मैं जैसे होता है ना कि उसकी जो शेप है, मान लो अगर आपका, ये मैं प्लास्टिक पॉलीथीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे हार्ड कंटेनर्स होते हैं. ठीक है, कोई बॉटल हो गई फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, आपके बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में भी, इफ़ यू वुड हैव रेड दिस, कि आपकी जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, ठीक है, अगर आप उसमें गर्म पानी डालो तो दे सिंपली एकदम से सुकर सी जाती हैं. ठीक है, उनकी जो शेप है बिल्कुल बिगड़ जाती है. वाई इज़ इट सो? बिकॉज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर, द प्लास्टिक जिसकी वो बनी होती है बॉटल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्लास्टिक, बट इट इज़ नॉट सेम एज it is the kind of plastic in polythene, the kind of plastic in your this bottles, plastic bottles and containers is not same as the plastic in polythene. ठीक है, both are different kind of plastic. आपको देखकर भी पता लगता है, and उन दोनों का texture भी different है, सब कुछ different है, properties तो है ही different. ठीक है, तो आपके जो कंटेनर है जो कि ऐसे टाइप के प्लास्टिक के बने होते हैं विच आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर. सेंसिटिव मतलब वो ना अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. अगर ये कोई बॉटल है, ठीक है, उसकी ऐसी कोई शेप है, ओके, तो वो एकदम से अगर उसमें पानी डालोगे तो वो कुछ ऐसे 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 मतलब हो जाएगी. या फिर अगर और अच्छा सा फिगर बनाऊँ, जैसे अगर ये बॉटल है, ठीक है, ये आपकी बॉटल हो गई. एक और अच्छे से ऐसे डायग्राम बन जाएगा. वेट,
ठीक है, आपकी बॉटल है, आप उसमें गर्म पानी डालते हो, ये फिर ऐसे बन जाएगी कुछ। ये बिल्कुल ऐसे ना सुकुर सी जाएगी, ऐसे करके ऐसे ऐसे बन जाएगी। वाई सो? क्योंकि इसकी शेप, इट कैन नॉट मेंटेन इट्स शेप जब टेम्परेचर हाई होता है। तो ऐसे प्लास्टिक्स को बोलते हैं थर्मो, मीन्स टेम्परेचर सेटिंग plastics, thermosetting plastics which are sensitive to temperature, ठीक है, एंड दे सॉफ्टन और दे बेंड, ठीक है, बेंड हो जाते हैं, सॉफ्टन हो जाते हैं। इसको हम बोलो SOFTEN, इसको हम लोग सॉफ्टन नहीं बोलते, ठीक है, सॉफ्टन नहीं बोलते भी, इसमें TEN जो है वो साइलेंट होता है, तो T जो है वो साइलेंट होता है, तो इट्स कॉल्ड सॉफ्टन। सॉफ्टन, उसको हम सॉफ्टन की तरह प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली सॉफ्टन होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज सॉफ्टन, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट। सो दोज काइंड ऑफ प्लास्टिक्स विच सॉफ्टन और विच गेट डिसफिगर्ड, ठीक है, मतलब डिसफिगर्ड मतलब अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है, दोज काइंड ऑफ प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे आपको मैंने बताया बॉटल्स में और कई सारे प्लास्टिक कंटेनर्स में यूज़ होता है ये, ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो एक और काइंड का प्लास्टिक है दैट इज़ ऑल्सो थर्मो, मतलब इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी टाइप का प्लास्टिक जो कि थर्मो से रिलेटेड हो, ठीक है, जिसका नाम थर्मो से शुरू होता हो, उसका मतलब देखकर ही समझ जाओ कि इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, या फिर ये समझ जाओ कि बेसिकली हम उसका नाम ना टेम्परेचर को देखते हुए रखा गया है कि हाउ डज़ इट बिहेव इन हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, ठीक है। तो उसी तरह अभी जो एक थर्मोसेटिंग हो गया, दूसरा था थर्मो प्लास्टिक्स, इनका नाम ही थर्मोप्लास्टिक्स है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, एक मिनट। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, एक छोटी सी गलती हो गई, वो ये है कि जो आपको मैंने भी बताया, जो मैं बहुत जल्दी बेंड हो जाते हैं, सॉफ्टन हो जाते हैं, वो टाइप के प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स, ओके, मीन्स दे गेट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से वो डिसफिगर्ड हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है, ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं विच आर नॉट इफेक्टेड, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय व्हाट, बाय एनी राइज इन टेम्परेचर। वो डिसफिगर नहीं होते, वो सॉफ्टन नहीं होते, वो बेंड नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी वो शेप अपनी मेंटेन करके रखते हैं, दे डोंट गेट डीफॉर्म्ड, अपने फॉर्म को वो, मतलब जिस फॉर्म में शेप में वो है उसको वो डिसफिगर या डीफॉर्म नहीं करते हैं, उसको ख़राब नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने थर्मोप्लास्टिक्स का जो एग्जांपल था, एक तो बॉटल्स हो गई और ऐसी कई पाइप्स होती हैं जिनको हम PVC पाइप्स बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पाइप्स को बहुत सारी शेप्स में बेंड किया जा सकता है, पाइप्स को, PVC पाइप्स को, ठीक है, जो आपकी प्लम्बिंग में यूज़ होती हैं, टैंकी वगैरह में लगती हैं, उनको PVC पाइप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इवन ऐसे पाइप्स भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिससे आप पानी डालते हैं किसी में, जैसे वॉशिंग मशीन की पाइप हो गई, या फिर ऐसी कोई पाइप हो गई कि आपने अगर एक नल से एक बाल्टी में डालना है पानी, वो भी एक तरह का पॉलीमर होता है, वो या तो आपका नायलॉन हो सकता है, ठीक है, एक टाइप का नायलॉन हो सकता है, या फिर वो एक टाइप का प्लास्टिक हो सकता है, तो इट डिपेंड्स कि वो किस टाइप का है। बट फ़िलहाल के लिए आप ये समझो कि PVC पाइप्स में थर्मोप्लास्टिक्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है, पर PVC इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो उसमें क्या है कि उसका काफ़ी जल्दी से उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़ॉर्म हो सकता है, इसलिए इसको आसानी से बेंड किया जा सकता है, ठीक है। और इवन आपकी जो पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, पॉलीथीन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। आप उसको भी मतलब बेंड कर सकते हो, उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। आपने देखा हो कि आप पॉलीथीन को बिल्कुल मचोड़ भी सकते हो, मचोड़ के अंदर रख सकते हो पॉकेट में, राइट। तो आप उसको जब मचोड़ते हो तो वो आसानी से लिपट जाता है, राइट, तो काफ़ी मतलब सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ऑन द अदर हैंड अगर मैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करूँ,
तो as these kind of plastics, they do not get deformed or they do not get affected by change in temperature or by rise in temperature. ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. they keep their shape maintained as it is. They do not change. ठीक है, they do not get deformed. ओके, स्पेशली ऑन हीटिंग. ठीक है, वो एक ही बार जब when they are molded once, they cannot be softened by heating. ठीक है, जैसे कि आपके स्विचेस का जो प्लास्टिक होता है, आपने स्विच बोर्ड देखा होगा. ठीक है, इसमें से स्विचेस ऐसे लगे होते हैं. ठीक है, तो इनका जो प्लास्टिक होता है ये भी कोई ऐसा मतलब ये भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का ही बना होता है, विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग. तभी जो स्विचेस होते हैं, अगर बाई चांस आपने बहुत देर तक कोई स्विच ऑन करके रखा हुआ, वो गर्म हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसमें से बहुत देर तक आप में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत देर तक गर्म हो जाएगा वो, लेकिन जो प्लास्टिक है वो मेल्ट नहीं होगा. ठीक है, तभी स्विचेस में हमेशा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक नाम होता है, एक एग्जांपल है बेकलाइट. ठीक है, बेकलाइट एक तरह का पॉलीमर है. इट्स अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. ठीक है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच इज़ यूज्ड टू मेक स्विचेस. ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें यूज़ लाइक जैसे स्विचेस हो गए, और आपके मेजरली आपका जो स्विचेस यूज़ होते हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स. आपने देखा है कुकर होता है, कुकर का एक हैंडल होता है जो आपको बोलते हैं कि आप उसको पकड़ के आप उसको मकरछी अंदर घुमाते हो, क्योंकि कुकर तो गर्म हो जाता है, राइट, जो उसका अंदर का पार्ट होता है, बट बाहर जो पार्ट होता है वो इंसुलेटेड, ब्लैक कलर का जो आपने हैंडल देखा होगा. ठीक है, वो भी एक तरह का प्लास्टिक होता है, वो गर्म नहीं होता है. ठीक है, तो वो क्या है जिससे आप वो कंफर्टेबली पकड़ सको, आपको गर्म ना लगे, तो वो भी बेकलाइट का बना होता है. बेसिकली बेकलाइट का एक प्रॉपर्टी है कि इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय राइज इन टेम्परेचर एंड इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर. वो उसको सहन कर सकता है, टॉलरेट. ठीक है, इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर. तो इट इज़ या टॉलरेट या फिर इट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर. मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. रेजिस्टेंट का मतलब कोई फ़र्क ना पड़ना, उसको रेजिस्ट कर लेना. ठीक है, इसको टॉलरेट कर लेना. ओके, दिस इज़ क्लियर. उसके बाद एक और टाइप का है ये आपको एग्जांपल बता रही मैं थर्मोसेटिंग की. एक बेकलाइट हो गया, दूसरा होता है एक मेलामाइन. ठीक है, मेलामाइन यूज़ होता है एक बार दोबारा से MELAMINE. इट इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसमें एक्चुअली इट्स अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर. ठीक है, इट्स नॉट अ प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर. इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, बट इसका नाम है थर्मोसेटिंग पॉलीमर. ठीक है, तो इसका क्या होता है, जैसे मेलामाइन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरी या बहुत सारी कुकवेयर. ठीक है, कुकवेयर बनाने के लिए मेलामाइन यूज़ होता है. और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो फायरमैन होते हैं, जो ऐसे फायर फाइटर्स जो होते हैं, अगर आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स आते हैं, राइट. अब उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो भी इसी मटेरियल की बनी होती है जिसको हम मेलामाइन बोलते हैं, सो दैट ताकि वो आग ना पकड़े. ठीक है, और ये आपको बहुत सुनने में अच्छा मतलब काफ़ी यू बी अमेज्ड टू नो कि अनलाइक सिंथेटिक फाइबर्स, जो दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे नायलॉन सिंथेटिक, ठीक है, पॉलिएस्टर, ये सारे जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर वेरी जैसे बोलते हैं सेंसिटिव टू हीट, यानी काफ़ी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं. वो बॉडी जो बंदे ने अगर कोई कपड़ा पहना होता है उसके साथ चिपक जाते हैं वो. ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कि मेलामाइन मटेरियल है जैसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है, अब इसकी देखो प्रॉपर्टी कितनी डिफरेंट है ये भी सिंथेटिक, सब कुछ सिंथेटिक है, मैन मेड. इट इज़ नॉट ओरिजिनल, इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचर, इट इज़ मैन मेड. ठीक है, तो जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जैसे मेलामाइन, ठीक है, इट कैन टॉलरेट हीट एंड इट कैन रेजिस्ट हीट एंड हाई टेम्परेचर, जिससे कि ये मेल्ट नहीं होता है, बॉडी के साथ चिपकता नहीं है. इनफैक्ट ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को. ठीक है, बाहर किसी फायर से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. और थर्मोप्लास्टिक्स में आई टोल्ड यू अबाउट पॉलीथीन इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक पहला. ठीक है, और PVC पाइप्स में भी आपको मैंने बोला इट्स अ काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, विच गेट ईजिली सॉफ्टेंड और बेंट विद राइज इन टेम्परेचर, या फिर व्हेन सब्जेक्टेड, यानी जब उनको लाया जाता है हाई टेम्परेचर में, व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, दे मे गेट सॉफ्टेंड और दे मे गेट डिसफिगर्ड और दे मे गेट डिफॉर्म्ड. एक ही बात है. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर.